Okay. Today also we can discuss about the rocks and their genesis. इसका तो third part है. In the first part we have discussed about rock, major rocks, major types of rocks. फिर उसमें ही we have studied about igneous rocks का different types and characteristics. In the second portion we have studied about sedimentary rock. Sedimentary rock का जो characteristics है उसके बारे में पढ़ा है and the type of sedimentary rocks that we have studied yesterday. And along with that we have studied about the conformalities of sedimentary rocks. इसके बारे में भी पढ़ा है. Right now today we can discuss about the third type of rock, that is metamorphic rocks. So as this name states, it is metamorphosis. Metamorphose okay, जो rock है, जो पहले वाला जो barren rock है, like the igneous rock, like the sedimentary rock, उसका changes हो गया है. How? In the form or the composition. इसका फॉर्म में नहीं है तो इसका कॉम्पोजिशन में चेंज हो गया है विदाउट डिसइंटीग्रेशन और डीकम्पोजिशन. इसका डिसइंटीग्रेशन लाइक देयर इज वो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वेदरिंग के वजह से नहीं है, वो कुछ चीज के वजह से, दूसरे कुछ चीज के वजह से रॉक का अपना फॉर्म, पहले वाला जो फॉर्म है इग्नियस रॉक का अपना वाला फॉर्म चेंज होगा, जो इसके अंदर का क्रिस्टल्स चेंज होगा, उसका कॉम्पोजिशन चेंज होगा. Not because of disintegration or decomposition of rock, then we will see it as metamorphic rock. तो decomposition और disintegration होने से क्या होगा, वो पत्थर it will break into pieces, वो broke down होकर piece बन जाकर वो weathered होकर erode होकर जाएगा. But this is not happening in metamorphism. In metamorphism what happens is the rock size will remain the same, but the internal structure, internal composition of the rock will change due to certain factor. So the metamorphic rocks came from the term metamorphose, meaning change in form. अपना form change है, अपना shape वो अंदर का जो composition है वो change हो गया है. Change in mineral composition, mainly we know that the rock is made up of compounds, और compounds नहीं है तो minerals है. Minerals का जो compounds है उसका composition change हो गया है, नहीं है तो इसका जो texture है वो change हो गया है through temperature and pressure. जैसे in weathering also different agents ने ये तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, it is because of change in the temperature. जो बाहर का टेम्परेचर के वजह से, नहीं तो जो प्रेशर है वो कन्वर्जन के टाइम में जो प्रेशर आता है, ऐसा वाला प्रेशर ज्यादा नहीं है तो वो सेडिमेंटेशन के टाइम में एक के ऊपर दूसरा लेयर आने से दैट विल आल्सो एक्सर्ट सर्टेन काइंड ऑफ प्रेशर ऑन द रॉक. तो ऐसा प्रेशर करने से I said there will be cementation for sedimentary rock, but instead in metamorphic rock क्या होगा, इसका अंदर का जो what is inside, वो अंदर का minerals का composition change होगा. Change in the mineral composition and texture through temperature and pressure. Unlike igneous rock, the texture of the metamorphic rock is the result of recrystallization or the conversion of one mineral to another. ऐसा है. तो same अभी इसमें when we say about the texture of sedimentary rock or metamorphic igneous rock, वो ऐसा है, वो अपना से crystalline rock है, mainly igneous rock. Sedimentary rock में crystals नहीं है, तो crystals होने भी उतना consolidate नहीं है, तो crystal इसमें होगा, igneous rock में होगा. तो क्या ऐसा है, mainly it happens in intrusive igneous rocks में rocks का crystal होगा, लेकिन that is also visible in metamorphic rock. But in this metamorphic rock what happens is
इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्रिस्टलाइजेशन। जो पहले वाला क्रिस्टल था वो चेंज होकर नया वाला कुछ क्रिस्टल हो गया। तो हाउ द मिनरल कंपाउंड, द एलिमेंट्स which comprises this particular rock will change to another mineral, वो दूसरा मिनरल बन जाएगा because of high pressure and high temperature. Changes occurs to igneous rocks. It can be happen, वो metamorphic rock का जो बनता है, it can happens to igneous rock, it can happens to sedimentary rock and also to the previous metamorphic rock. जो पहले वाला मेटामॉर्फिक रॉक था उसके अंदर भी मेटामॉर्फिज्म अगेन हैपन, इट कैन आल्सो हैपन अगेन। तो पहले हो गया इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक में चेंज कर दिया, सेडिमेंट्री रॉक में कर दिया, फिर चेंज इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट होकर मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। तो उसी टाइम में एक कंडीशन था, एक तरीके का कंडीशन होगा, जैसे प्रेशर ज्यादा होगा नहीं तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो दैट हैज बीन कन्वर्टेड टू मेटामॉर्फिक रॉक। बट लेटर आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा, ये प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया है, नहीं ये तो वो जस्ट जो रॉक मेटामॉर्फिज्म प्रेशर से मेटामॉर्फोसिस हो गए आया था उसके ऊपर और टेम्परेचर भी आ गया, तो क्या होगा फिर जो मेटामॉर्फोसिस रॉक है दैट अगेन अंडरगोस मेटामॉर्फिज्म, and that process we will say it as remetamorphism. When metamorphic rocks are again metamorphosed, it is called remetamorphism. तो इसमें पहले है metamorphism means the change in the form and composition of the rock without any disintegration or decomposition. Disintegration and decomposition, why it is saying? Because that happens during weathering. So during this change in form and composition not happen during weathering से नहीं हो रहा है, weathering होने से वो रॉक ब्रेक होकर वो जाना था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। what happened, there will be recrystallization, जो रॉक के मिनरल्स है उसके अंदर वो चेंज होकर दूसरा मिनरल बन जाएगा, नहीं है तो एक तरीके का क्रिस्टल दूसरे तरीके का क्रिस्टल बन जाएगा। that is what happens. And it can be happen in igneous rock, it can be happen in sedimentary rock, and it can also be happen in metamorphic rock. If it is happen in a metamorphic rock, we will say it as remetamorphism, the process. Now there वो changes है, वो metamorphism in a rock that can be happen in two ways. One is physical metamorphism and second one is chemical metamorphism. Second one is chemical metamorphism. तो physical metamorphism क्या है? Change in the textural composition of the rock. Texture, अभी एक rock ऐसा एक rock है, इसके अंदर ऐसा ऐसा texture था, ऐसा एक पैटर्न है था, तो बाद में क्या होगा, सेम rock में इसका texture चेंज होकर दूसरा कई कुछ शेप में बन जाएगा। अभी ऐसा हो गया तो ऐसा ऐसा टेक्सचर बन जाएगा। तो दैट काइंड ऑफ टेक्सचर दैट कैन बी हैपन either due to mostly this happens because of प्रेशर के वजह से, बिकॉज ऑफ प्रेशर के वजह से मोस्टली दिस फिजिकल मेटामॉर्फिज्म हैपेंस। तो इसमें टेक्सचर चेंज होगा। दूसरे में होगा केमिकल मेटामॉर्फिज्म। From the name itself, we can understand that there will be some kind of chemical change in the composition. The chemical composition of the rock will change. ये तो क्या होगा, अभी ज्यादा प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर आ गया तो क्या होगा, वो एक मिनरल्स तो कन्वर्ट होगा दूसरा मिनरल बन जाएगा ज्यादा टेम्परेचर आने से। आई एम नॉट सेइंग 100% टेम्परेचर, देयर विल बी इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर आल्सो, बट द डोमिनेंट फैक्टर इन केमिकल कॉम्पोजिशन विल बी temperature and the dominant factor in physical will be the pressure। ऐसा है, एक में टेक्सचर चेंज होगा, दूसरे में केमिकल कॉम्पोजिशन, वो मिनरल एक मिनरल कन्वर्ट होकर दूसरा मिनरल बन जाएगा। है समटाइम्स द बोथ हैपेंस टुगेदर, वो भी है, ऐसा नहीं बोल पाएगा। फिजिकल एक रॉक को फिजिकल मेटामॉर्फोसिस होगा, दूसरे का केमिकल मेटामॉर्फिज्म ही होगा, ऐसा कभी भी ऐसा कुछ रूल्स नहीं है। समटाइम्स देयर इज चांस ऑफ हैपन, बोथ विल हैपन।
अभी हम बोल दिया है रीमेटामॉर्फिज्म हो रहा है, तो रीमेटामॉर्फिज्म में क्या है, अभी व्हेन देयर इज रीमेटामॉर्फिज्म there will be change in a metamorphic rock. So metamorphic first, sometimes it will be physical metamorphism. Later on, due to the high temperature, there will be chemical metamorphism in the rock. So that can also happen. So this can happen together. That is, so these are the two important ways of metamorphism that occurs. Then in metamorphism, you want to understand this name foliation. Abhi, when we studied about igneous rock also, we have studied about exfoliation. वो weathering के टाइम में हम बोल दिया था exfoliation तो एक है, तो क्या है, peeling of rock outer layer, वो rock का outer layer को peel करके निकाल देगा. That process was called exfoliation. But foliation that happens usually for this metamorphic rock. So what is foliation? Foliation in geology refers to repetitive layering in metamorphic rock. So what is that? Layering in metamorphic rock. Each layer can be as thin as a sheet of paper or over a meter in thickness. Over a meter in thickness. ऐसा है. If you look at this picture, you can see there is layers, multiple layer. Within the rock there will be multiple layer. Just like अभी आप सोचेगा अभी सेडिमेंट्री रॉक में है ना अभी लेयर्स, तो इसमें ये लेयर क्या है, ये तो कॉम्पैक्ट है, ये की लेयर है, कंटिन्यूस है, कंसोलिडेट है. लाइक इट कैन हैपन इन इग्नियस रॉक से जो कन्वर्ट होकर मेटामॉर्फिक होकर जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसमें भी यू कैन सी दिस काइंड ऑफ लेयर्स. बट व्हाट हैपन, इट कैन बी ऐसा एक के नीचे ये, तो इसके बीच में भी जो है दैट वी विल से इट एज बेडिंग प्लेन ही बोलता है. लेकिन जो मेटामॉर्फिक रॉक में आता है ऐसा रिपीटेटिव लेयर, वी विल से इट एज फोलिएशन. तो अभी सेडिमेंट्री रॉक में क्या बोलता था, stratification. Instead of foliation we have said that it is stratification for rock, but for metamorphic rock वो ऐसा है, छोटा छोटा पत्थर होने से भी you can see multiple layers. ऐसा एक हो गया, फिर हो गया ऐसा thin, it can be of very thin layers like a sheet. इतना small layers भी हो सकता है. At the same time it can be up to over 1 meter. उतना thickness है भी. And these are usually थिक रॉक है, वो ऐसा नहीं है, हार्ड और रेजिस्टेंट रॉक भी होगा. ये फोलिएशन जो रॉक का इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक का फोलिएशन हो गया है, दैट कैन बी दैट इज यूजुअली हार्ड एंड रेजिस्टेंट रॉक्स. बट इन द केस ऑफ सेडिमेंटरी रॉक व्हाट हैपेंस, दैट विल यूजुअली that will not be that much of hard or resistant to erosion. Instead here it is foliation. So foliation, exfoliation and stratification or strata, ये तीन almost same concept है. exfoliation and foliation वो उल्टा नहीं होनी चाहिए, ये तो याद रखना है. foliation is for metamorphic rock and during weathering when the outer layer of the rock is peeling out, then we will say it as exfoliation. exfoliation वो outer layer निकाल रहे. But here what happens is the rocks itself change into a different form. जैसे physical metamorphism में बोल दिया है, what happens, the rock will change its textural composition. तो इसका textural composition में change हुआ है. तो इधर why, that is why there is layering. textural composition में change होकर वो layering you can see it visible है. And next term is fissility. Is the ability or tendency of a rock to split along a flat plane or weakness. If you look here, this is the flat plane. अभी multiple foliation layers है, एक layer हो गया, दूसरा layer हो गया, तीसरा layer हो गया, 4 5 ऐसा multiple layers है इसमें. But क्या होता है, when there is weakness, when there is weakness in the rock, ये फ्लैट प्लेन में क्या होगा, वो रॉक विल गेट स्प्लिट, वो रॉक स्प्लिट हो जाएगा. अभी देखो यहाँ यू कैन सी क्लियरली द स्प्लिटिंग ऑफ द रॉक.
So that kind of process we will say it as fissility. ये terms जो भी बोलता है वो याद रखना है. तो पहले है रॉक में एक्सफोलिएशन फोलिएशंस होगा, डिफरेंट मल्टीपल लेयर्स होगा, दैट कैन बी थिन और थिकनेस अप टू ओवर अ मीटर, 1 मीटर तक इसका थिकनेस हो जाएगा. एंड दैट इज कॉल्ड repetitive layer. We will say it as foliation. And in this repetitive layer, or that is on a flat plane, if the rock is split due to weakness, वो इसका वो रॉक के बीच में कुछ एरिया तो ऐसा होगा उसका वीकनेस वीक पॉइंट होगा, तो उधर से ये तोड़ जाएगा. तो दैट काइंड ऑफ प्रोसेस वी विल से इट एज फिसिलिटी. अनदर टर्म इज क्लीवेज. So what happened? Certain rock can get split into thin sheet along closely spaced parallel planes, which may be inclined to the bedding plane. This is actually parallel to bedding plane था यहाँ, but instead there will be inclined. ऐसा एक तो this is the cleavage and this is the bedding plane. ऐसा एक तो rock है, तो यहाँ एक joint आ रहा है, that is the bedding plane. यहाँ ये difference आ रहा है. तो इसका क्रॉस, इसका इंक्लाइन, एक तो लाइन आ रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड क्लीवेज. सच टेंडेंसी ऑफ ए रॉक इज कॉल्ड क्लीवेज. सर्टेन रॉक कैन गेट स्प्लिट इनटू थिन शीट. ऐसा ऐसा थिन शीट्स बन जाएगा. इफ यू लुक हियर यू कैन सी मल्टीपल शीट्स बन जाएगा. मल्टीपल शीट्स है इसमें जैसे इसमें. तो इसमें क्या होगा, वो बेडिंग प्लेन के इंक्लाइन, दैट इज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर डायगोनल शेप में. अभी बेडिंग प्लेन ऐसा है तो ऐसा, उल्टा बेडिंग प्लेन ऐसा है तो इसका ऐसा ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका उसी जगह पे क्या होगा, द रॉक्स कैन गेट स्प्लिट इनटू, वो स्प्लिट हो जाएगा. सो दैट काइंड ऑफ स्प्लिटिंग वी विल से इट एज क्लीवेज. सो बोथ फिसिलिटी एंड क्लीवेज ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट है. यहाँ क्या होगा, रॉक स्प्लिट होगा कहाँ पे, फ्लैट प्लेन में. वो ऊपर का वो जो प्लेन है उसी प्लेन में, अभी ये ऐसा शेप है हॉरिजॉन्टल है, तो इधर इसका स्प्लिटिंग होगा. लेकिन इंस्टेड हियर इन क्लीवेज में क्या होगा, जो बेडिंग प्लेन है, अभी बेडिंग प्लेन ऐसा है तो उल्टा यहाँ इंक्लाइंड होगा. अभी बेडिंग प्लेन ऐसा है तो उल्टा ऐसा, तो ऐसा परपेंडिकुलर और ऑलमोस्ट इंक्लाइन शेप में है तो वी विल से इट एज, वो स्प्लिटिंग ऐसा होने से वी विल से इट एज क्लीवेज. Then for this metamorphism there will be some agents. जब हम physical metamorphism बोल दिया है और chemical metamorphism बोल दिया है, नहीं तो when I explained about what is metamorphism, I said there will be mechanical or chemical change, and that is not due to weathering process, it is due to heat and pressure. So the major agent of a metamorphism, major agents of metamorphism is, the major agents of metamorphism are heat, compression and solution. The most important agent of metamorphism is heat. जो अभी बोल दिया, केमिकल रॉक में केमिकल चेंजेस हो गया है. कैसे हो गया, ज्यादा टेम्परेचर आ गया उसके ऊपर, तो रॉक इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, मेल्ट करेगा, दूसरा रॉक बन जाएगा. इट विल ऑटोमेटिकली चेंज दूसरा रॉक. नहीं है तो उसका क्रिस्टल चेंज होकर दूसरा क्रिस्टल बन जाएगा, उसका मिनरल चेंज होकर दूसरा मिनरल बन जाएगा. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म इज हीट. It provides the energy to derive the chemical change that result in the recrystallization of minerals. As this I have already told you. तो यही ज्यादा हो गया तो that will force chemical change in the mineral composition में उसका change होगा, chemical change होगा. That will leads to become a new rock. Rocks are seldom melt but मिनरल कॉम्पोजिशन चेंज. वो तो ऐसा पूरा मेल्ट नहीं होगा, वो थोड़ा मेल्ट जैसा वो प्लास्ट मोल्टन स्टेज में थोड़ा चेंज होकर दैट विल बी रिक्रिस्टलाइज. वो फिर ठंडा हो जाने से दैट विल बी रिक्रिस्टलाइज एंड टू फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक. हीट में बी डिराइव्ड फ्रॉम
intrusion of molten material rising from below. What is that? That is magma. जब magma नीचे से आएगा, वो एक रॉक के अंदर वो magma आएगा तो क्या होगा, उसका जो कॉन्टैक्ट एरिया है, जो सामने वाला जितना भी एरिया है, उधर बहुत ज्यादा टेम्परेचर, अंदर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर it will provide, the magma will provide. So that will result in the chemical change in the chemical composition. So that can be happen in intrusive igneous rock में कर सकता है. तो ये अंदर है इसलिए तो उधर हीट का कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ऐसा नहीं सोच पाएगा, बिकॉज magma is coming through that area. तो उसी एरिया में जाएगा तो there will be contact, वो रॉक सामने वाला जो रॉक है उसका तो चेंज होगा. है अभी एक्सट्रूसिव रॉक है तो क्या है, एक्सट्रूसिव रॉक होने से भी अभी लावा बाहर मैग्मा बाहर आ जाएगा एंड दैट विल बी कन्वर्ट टू लावा और मैग्मेटिक वाटर बन जाएगा, वो ऊपर से ऐसा फ्लो करेगा. तो फिर भी देयर इज मोर देन इनफ टेम्परेचर विल गेट टू दैट पर्टिकुलर रॉक एंड दैट रॉक विल कन्वर्ट टू अनदर मेटामॉर्फोसिस रॉक बन जाएगा. Then the second one is compression. How? Compression is caused by convergent horizontal movement. Compression or horizontal movement. The folding resulting in changing of form and composition of the rock. तो है इसमें बोल दिया है more operative during mountain building. Compression means अभी when there is convergent movement, एक से दूसरे साइड में ऐसा convergent हो रहा है. एक प्लेट इधर है, दूसरा प्लेट इधर है, तो वो कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट दोनों एक तरीके से आ रहे, तो इस वो बीच में आने से देयर विल बी कंप्रेशन. ये अभी ये नीचे जाएगा, फिर भी ये ऊपर आ रहा है, तो इसके बीच में भी इसका कंप्रेशन होगा. दिस विल बी, देयर विल बी फोल्डिंग, बहुत ज्यादा फोल्डिंग होगा. सो दैट विल एक्सर्ट ट्रमेंडस प्रेशर ओवर द रॉक. वो प्रेशर, वो व्हेन देयर इज कन्वर्जन, तो that means there is lot of energy. दोनों साइड से ये बहुत ज्यादा एनर्जी का कांटेक्ट और एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है एक वन प्लेट से दूसरे प्लेट. तो देयर विल बी लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द रॉक. ड्यूरिंग दैट टाइम क्या होगा, यूजुअली दैट इज कॉल्ड माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस. और ओरोजेनिक फ्रोस्ट के बारे में हम बोल दिया था, तो उसी तो दोनों टाइप साइड से प्रेशर आएगा एंड दैट विल चेंज द रॉक कॉम्पोजिशन. वो उसी टाइम रॉक का फॉर्म. एंड अभी सोचो ऐसा वाला एक रॉक था, तो क्या होगा, उसका फोल्ड करेगा ये रॉक, तो इफ उसका टेक्सचर में चेंज होगा. सो दैट इज व्हाई व्हेन आई सेड if it is mechanical process, if it is mechanical process, there will be textural change, and if it is chemical process, that will be happen because of the temperature change से होगा chemical, and mechanical होगा pressure से. And finally the third one is solution. Chemically active hot water and gases which pass through the rock change their chemical composition, like magmatic water. हम इसमें बोल दिया है क्या होगा, बहुत हाई टेम्परेचर पानी गुजरेगा तो वो कांटेक्ट में जितना भी रॉक आएगा दैट विल बी कन्वर्टेड, वो उसका तो चेंज होगा. बट यहाँ क्या है, वो पानी, वो वाटर दैट इज हॉट आल्सो हैव सम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, उसके अंदर बहुत कुछ केमिकल्स भी होगा. तो एक साइड में टेम्परेचर लेके आया है तो रॉक का स्टेबिलिटी जाएगा. रॉक इज ट्राइंग टू चेंज टू सम अदर रॉक, और मिनरल इज ट्राइंग टू चेंज टू सम अदर मिनरल, उसका कोशिश कर रहा है. उसी टाइम क्या होगा, दूसरा कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन इसके साथ ऐड कर देगा, सो दैट विल एक्ट एज अ स्टिमुलेटेंट, वो स्टिमुलेट करेगा एंड द मिनरल विल कन्वर्ट टू दूसरा मिनरल बन जाएगा. दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन. तो heat, one of the major agent is heat, then the process of compression, that is pressure, and the third one is solution. Now see what are the classification of metamorphism. तो अभी क्या क्या प्रोसेस है,
क्या क्या एजेंट्स है, क्या क्या प्रोसेस उसमें, मैकेनिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस है, ये सब बोल दिया है। तो क्लासिफिकेशन इज ऑफ मेटामॉर्फोलॉजी इज मेनली बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एजेंट्स, जो एजेंट है। तो अब भी बोल दिया है, वन इज कंप्रेशन, सेकंड वन इज टेम्परेचर और हीट, एंड थर्ड वन इज सॉल्यूशन। तो ये तीनों के वजह से रॉक मेटामॉर्फोस हो रहा है। तो यहाँ based on these agents we can classify the metamorphism. Metamorphism is the process of changing. तो वो metamorphism को इस nature of agents के वजह से we have divided into 4 groups. One is thermal metamorphism, second one is dynamic metamorphism, third one is hydrometamorphism, and fourth one is hydrothermal metamorphism. So thermal metamorphism, as the term indicates or the name indicates, it is due to the action of heat. जो heat है, because of temperature change, there will be changes in the crystal or the mineral composition. That is called thermal metamorphism. And dynamic means something moving, always active. Dynamic है, always active है. So that is mainly happens because of pressure. वो कंप्रेशन के वजह से दो साइड से प्रेशर आ रहा है, तो देयर विल बी ऑलवेज a pressure exerting to that particular rock, and that will change its texture because of the same. And that kind of metamorphism we will say it as dynamic metamorphism. And third one is hydrometamorphism. वो यहाँ क्या हुआ है, प्रेशर ही है लेकिन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। तो ये कैसे है, वही बहुत ज्यादा पानी कंटिन्यूसली आ रहा है, कंटिन्यूसली वाटर और पानी का जो प्रेशर आ रहा है वो रॉक में, तो कंटिन्यूसली आ रहा है। एंड ऐसा आने से क्या होगा, इसके साथ केमिकल कॉम्पोजिशन भी इसके साथ होगा। तो ये अटैच करके अभी हम बोल दिया, वेदरिंग के टाइम में बोल दिया, वो क्रैक में घुसेगा, वो ये रॉक के अंदर केमिकल चेंजेस करवा देगा, एंड दैट विल लीड्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। ऐसे यहाँ भी ऐसा है, ये हाइड्रोलॉजी की फोर्स से और हाइड्रोलॉजिकल प्रेशर से ये रॉक मेटामॉर्फोसिस होगा, इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, नहीं तो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होगा। दैट काइंड ऑफ metamorphosis is called hydrometamorphism, purely relating to water. Then hydrothermal metamorphism. This is from the term hydro means water and thermal metamorphism. So hot water, like magmatic water आ रहा है, तो ऐसा hot water आने से, and that will also have the chemicals added to it. तो अपना सा कुछ chemicals composition भी है, पानी आ रहा है, पानी कैसा है, that is hot as well. तो ऐसा बहुत कुछ चीज मिला के जो मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म. So based on nature of agents, we can divide the metamorphism into 3, 4. One is thermal, that is heat action; dynamic metamorphism, that is pressure due to the pressure or compression activity; and the hydrometamorphism due to hydrostatic pressure. Then hydrothermal metamorphism due to water and heat. Then comes based on place or area. अभी कुछ तो ऐसे मेटामॉर्फिस होगा एक पर्टिकुलर प्लेस में और पर्टिकुलर एरिया में, दूसरा होगा पूरा एरिया में, पूरा होल एरिया में रॉक चेंज होगा, नहीं ये तो दूसरा हो गया, और एक पर्टिकुलर जगह में ही इसका मेटामॉर्फिज्म हो रहा है। बाकी रॉक को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ जगह का रॉक, वो रॉक विद इन दैट एरिया देयर विल बी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एरिया, दैट एरिया, उसी एरिया का rocks metamorph होगा. So based on that we can divide the metamorphism process into 2. One is contact metamorphism and second one is regional metamorphism. तो contact metamorphism ऐसा है, if you look here, तो यहाँ during the time of volcanic eruption है, यहाँ this is the vent, तो vent से volcano तक ये तो आ रहा है, तो यहाँ से वोल्केनो बाहर आएगा। तो व्हाट इज द मटेरियल इट इज कैरी, दैट इज मैग्मा। तो मैग्मा चेंबर है,
यहाँ से मैग्मा लेकर आ रहा है ये जगह से। तो मैग्मा हैज इट्स कैरेक्टर, वो हॉट है, दैट इज मोल्टन हॉट मटेरियल है मैग्मा। तो उतना कमिंग फ्रॉम 3500 डिग्री टू 1000 डिग्री उतना तक टेम्परेचर है जो मैग्मा वो उसी एरिया से आ रहे। तो क्या है, ऐसा ऊपर आने से, ऐसा ऊपर है तो इसका सामने बहुत कुछ रॉक्स हार्ड रॉक्स होगा। तो दैट विल कम इन कांटेक्ट विद दिस पर्टिकुलर मैग्मा। वो मैग्मा जो आ रहा है उसके साथ इसका कांटेक्ट होगा। जो रॉक है हार्ड रॉक था पहले का, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक था, प्लूटोनिक रॉक, अबेसल रॉक, जो भी हो वो रॉक है, उसका कांटेक्ट इस मैग्मा से होगा। तो दैट विल प्रोवाइड इमेंस हीट, बहुत हीट देगा उस एरिया को, जो रॉक सामने वाला रॉक को, पर्टिकुलरली विच इज वेरी क्लोज टू द मैग्मा चेम्बर। वो मैग्मा चेम्बर का जो, सॉरी, मैग्मेटिक वेंट का जो एरिया है, नहीं तो चेम्बर का जो एरिया है, उस एरिया का, दैट विल बी दिस एरिया। ये जो एरिया है सामने वाला जो एरिया, उधर का रॉक को क्या करेगा, बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड विदाउट burial of rock that lies close to the magmatic intrusion। तो ऐसा वाला मैटर तो क्या होगा, दिस एरिया द रॉक विल चेंज इट्स कॉम्पोजिशन, वो अपना कॉम्पोजिशन और इसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। तो बाद में अभी वोल्केनो बंद हो गया तो अगेन दैट विल कूल डाउन, वो एरिया कूल हो जाएगा। तो इंस्टेड अगेन द रॉक विल रिक्रिस्टलाइज, वो अपना क्रिस्टल बना देगा। लेकिन पहले वाला जैसा नहीं होगा, that will be converted to new form of crystallization will happen। That kind of metamorphism we will say it as contact metamorphism, occurs due to heating with or without burial of rocks that lies close to magma intrusion। So that is actually localized in nature। वो एक ही पर्टिकुलर, वो नियर सामने वाला जो एरिया है उसी एरिया को ही इसका इन्फ्लुएंस होगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कॉन्टैक्ट। जो कॉन्टैक्ट में आएगा उसका मेटामॉर्फिज्म होगा। एंड सेकंड वन इज रीजनल मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म अफेक्टिंग rocks over an extensive area as a result of large scale action of heat and pressure। अभी ये तो यूजुअली हैपेंस, अभी एक और अभी माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है तो कन्वर्शन होगा, सॉरी कन्वर्जन होगा। तो कन्वर्जन होने से ये वो जो एरिया है बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी हिमालय रीजन इज फॉर्म्ड ड्यू टू दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन मूवमेंट। अभी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में, वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स एशिया, यूरेशियन प्लेट के उधर अंदर ये तो जा रहा है हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो उसी टाइम क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर है उसी जगह में, वो रॉक को बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। तो इसका बिकॉज ऑफ दैट द रॉक विल चेंज इट्स टेक्सचर, वो अपना टेक्सचर चेंज करेगा। वो कोई ये तो एक स्ट्रेट था, वो बेंड होगा, वो स्प्लिट होगा, ऐसा बहुत कुछ टेक्सचरल चेंजेस होगा वो रॉक के अंदर, विद इन द रॉक। तो ऐसा तरह, तो ये है बहुत ज्यादा एरिया को ये कवर करेगा। ऐसा वाला मेटामॉर्फिज्म वी विल से इट एज रीजनल मेटामॉर्फिज्म। तो रीजनल मेटामॉर्फिज्म, दिस इज कॉन्टैक्ट लोकलाइज्ड है, मेनली हैपेंस नियर मैग्मेटिक इंट्रूशन के सामने है। नहीं तो ऐसा कुछ उतना ज्यादा मैग्मेटिक इंट्रूशन अभी बाहर आने से ये जो सामने वाले ऊपर वाला जो रॉक है उसका भी कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा, चेंज होगा। बट रीजनल मेटामॉर्फिज्म इज नॉट लाइक दैट, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ बोथ टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से होगा। एंड दैट विल हैपन फॉर एन एक्सटेंसिव एरिया, मेनली ड्यूरिंग कन्वर्जन मूवमेंट। एक प्लेट नीचे जाएगा, ऐसा एक प्लेट नीचे जाएगा तो इधर से ऊपर ऐसा गैप से, क्रैक से मैग्मा ऊपर आ जाएगा, तो उधर टेम्परेचर ज्यादा है and remaining there will be very high pressure that will create change in the composition of rock, which we will say it as regional metamorphism, and it is also known as dynamic metamorphism।
So here I said dynamic metamorphism. Say dynamic metamorphism due to pressure. So यहाँ regional metamorphism को we will say it as dynamic metamorphism. Why? Because usually that happens during convergent movement. During convergent movement. So this is the classification of metamorphic rock based on, metamorphism based on area or place. And finally, based on this, we can classify our metamorphic rocks. पहले जो classify किया था metamorphism process को, अभी we are going to classify different types of metamorphic rock. Usually or generally, we are dividing the metamorphic rock mainly into two based on parent material. Parent material जो भी हो, based on that we will divide. First one is meta sedimentary rock or parametamorphic rock. Second one is meta igneous rock or ortho metamorphic rock. So from the name meta sedimentary, so it is formed the rock metamorphic rock which is made from sedimentary rock. We can say it as meta sedimentary rock or parametamorphic rock. And if the rock is made of metamorphic rock is made of igneous rock, we can say it as meta igneous rock or ortho metamorphic rock. So ये नाम याद रखना है. Meta sedimentary rock or meta igneous rock पूछने से we can say, but if the question is what is the difference between parametamorphic rock and what is the and ortho metamorphic rock, ये पूछने से confuse हो जाएगा. So ortho is relating to igneous rock and para is relating to sedimentary rock. अभी इसमें ऐसा कुछ है तो ये याद रखें, फिर भी ये नाम याद रखना है. मेटा सेडिमेंट्री रॉक इज पारा मेटामॉर्फिक रॉक एंड मेटा इग्नेस रॉक इज ऑर्थो है. इसका एग्जांपल्स है अभी सेडिमेंट्री रॉक से. सेडिमेंट्री रॉक वी नो दैट लाइमस्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक. तो सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्टिंग टू मेटामॉर्फिक, तो लाइमस्टोन इज कन्वर्टिंग टू मार्बल, वो मार्बल बन जाएगा. क्ले टू शेल बन जाएगा. Like the same here, igneous rock, we know that granite is an igneous rock that is converting to gneiss. Gneiss बन जाएगा. So look here, this is actually the limestone and that is converted to marble here, and this is actually granite and it is converting to gneiss. तो इसमें देखो ग्रेनाइट का टेक्सचर देखो ऐसा टेक्सचर था, लेकिन यहाँ क्या होगा, एक तो अलाइनमेंट आ गया, इसका ओरिएंटेशन हो गया टेक्सचर बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर. इसका बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर इसका अलाइनमेंट और टेक्सचर चेंज हो चुका है. So that is the major type of metamorphic rocks, meta sedimentary rock and meta igneous rocks. So that's about the metamorphism and metamorphic rocks. तो फर्स्ट यूनिट तो खत्म हो गया है अभी. Yes, you want to say something? No sir. Okay, ये मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में भी समझ में आया ना. जो हम हाईलाइट करके इसमें डालता है ना ऐसे बोल्ड लेटर में, वो थोड़ा ये और ज्यादा ध्यान देना है इसके ऊपर ना. जी सर. ओके, तो नेक्स्ट क्लास है, वी कैन स्टार्ट द सेकंड यूनिट. आई थिंक दैट इज रिगार्डिंग क्लाइमेटोलॉजी, राइट? Okay. Thank you sir. Okay. Good night sir. Good night. Okay then.